राइबोसोम क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। तो कैसे करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये जो गोल्गी बॉडी होती है इसकी दो फंक्शंस होती है, इसके दो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। एक होता है पैकेजिंग, ओके, और दूसरा रोल होता है इसका मॉडिफिकेशन। की एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है? गोल्गी बॉडी इज द मेजर साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, तो उसका फील आपको यहाँ पे आया होगा, कैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को फॉर्म करता है कौन? गोल्गी बॉडी। ओके, सो दे आर एक्टिव एट एसिडिक pH। ओके, तो ऐसे लाइसोसोम्स फॉर्म होते हैं। Hello dear students, this is Sir Biology and today our topic is about endomembrane system. Okay, so students, let's start. So what is endomembrane system? Basically this endomembrane system, it is found in eukaryotic cells, and what we know about eukaryotic cells, that there are membrane bound cell organelles present like mitochondria, chloroplasts, endoplasmic reticulum, Golgi bodies, lysosomes, vacuoles, peroxisomes. So these all are membrane bound organelles and they are found in eukaryotic cells, and these membrane bound organelles, they have different structures and different functions. Like mitochondria, its shape or structure is cylindrical or sausage shape, and the function of mitochondria is it performs oxidative phosphorylation. Similarly, chloroplast, its function is it contains chlorophyll and performs photosynthesis. Similarly, all of these membrane bound cell organelles, they have different shapes and they perform different functions. Now what happens here, students? Some of these membrane bound organelles, they perform their functions in coordination with each other. Okay, and hence they form a system that we call as endomembrane system. Okay, now what are these cell organelles that form this endomembrane system? They are endoplasmic reticulum, okay, Golgi body, lysosomes and vacuoles. If someone asks you, is mitochondria the part of endomembrane system? You will say no, because mitochondria does not perform its functions in coordination with these four membrane bound organelles, because we say endomembrane system is formed by those membrane bound organelles that have their functions in coordination with each other. Like we see in cell cycle and cell division chapter, we say that cell cycle is a continuous and coordinated process. And how it is a coordinated process? Because the phases of cell cycle, G1, S, G2 and M phase, they are in coordination with each other. They perform their functions in sequential order. Okay, they are in coordination with each other. Similarly, here some membrane bound organelles, okay, they are found, they perform their functions in coordination with each other and they form a system that we call as endomembrane system. And those cell membrane organelles that form this endomembrane system, they are endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosomes and vacuoles. Okay, so सिंपली हमने ये बोला स्टूडेंट्स, हमने बोला जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है ये यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, और यूकैरियोटिक सेल में आपको पता है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, लाइसोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये सब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल में। अब क्या होता है, कुछ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स इनमें से वो अपनी फंक्शंस को एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन मैनर में रहते हैं, तो वो एक सिस्टम बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और कौन कौन सी वो सेल ऑर्गेनेल्स है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। ये चार एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। तो यहां तक क्लियर। नाउ वी विल सी द डायग्रामेटिक व्यू ऑफ दिस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम एंड इट्स फंक्शंस। ओके, सो जो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस के पास में होता है, ठीक है। जैसे आप यहां देख सकते हो, जो न्यूक्लियस होता है इसका जो आउटर मेम्ब्रेन होता है, इसके पास ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है। क्यों होता है ये आपको अभी पता चलेगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
तो इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और दूसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस। और कैसे करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस? बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। ओके, और ये प्रोटीन सिंथेसिस, ये ट्रांसलेशन करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है? एमआरएनए। और वो एमआरएनए इसको ये न्यूक्लियस देगा। तो ये न्यूक्लियस इसको एमआरएनए प्रोवाइड करेगा। किसको? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे। सो इसका जो रोल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ये प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स। ओके, क्लियर। नाउ ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका रोल होता है ये लिपिड्स को बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स। और एनिमल सेल में, ओके, एनिमल सेल में ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक काम करता है, उसमें ये लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस करता है। ओके, इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइड हार्मोन सिंथेसिस। ओके, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है हार्मोन सिंथेसिस। ये आपकी एनसीईआरटी भी लिखती है। ओके, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फंक्शन है। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब है गोल्गी बॉडी, क्योंकि दूसरी ऑर्गेनेल जो है जो इस एंडोप्लाज्मिक सिस्टम को बनाती है वो है गोल्गी बॉडी। तो जो गोल्गी बॉडी होती है स्टूडेंट्स, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ये पैरेलली अरेंज्ड डिस्क लाइक, या इनको हम सैक लाइक स्ट्रक्चर्स बोलते हैं, जो इस गोल्गी बॉडी को बनाते हैं। और इनको हम सिस्टर्नी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिस्टर्नी। These parallelly arranged disc-like sac-shaped structures they are known as cisternae. Okay, और ये जो गोल्गी बॉडी होती है इसके दो फेसेस होते हैं। इसके दो फेस होते हैं। एक ये वाला फेस, इसको हम सिस फेस बोलते हैं। ओके, और इसको हम फॉर्मिंग फेज भी बोलते हैं, फॉर्मिंग फेस, क्योंकि ये होता है किसकी तरफ? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ, या न्यूक्लियस की तरफ इसका मुंह होता है। ओके, इसको हम सिस फेज या फॉर्मिंग फेज बोलते हैं। और ये वाला फेज, इसको हम ट्रांस फेज बोलते हैं, या इसको हम मैच्योरिंग फेज भी बोलते हैं। मैच्योरिंग फेज क्यों बोलते हैं मैच्योरिंग फेज, ये हम आगे देखेंगे। ओके, और ये जो गोल्गी बॉडी होती है इसकी दो फंक्शंस होती है, इसके दो इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं। एक होता है पैकेजिंग, पैकेजिंग, ओके, और दूसरा रोल होता है इसका मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन। तो पैकेजिंग ये करता है, किनकी पैकेजिंग करता है? इन प्रोटीन्स और लिपिड्स की, इनको ये पैक करता है। क्यों करता है पैक? इनको ये पैक करता है ताकि अपने टारगेटेड साइट तक जा सके। और टारगेट साइट आप किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? सिंपल, जहां पे ये प्रोटीन्स और लिपिड्स जहां पे इनका यूज होगा उसको हम बोलते हैं टारगेटेड साइट। और आपकी एनसीईआरटी लिखती है देयर आर टू टाइप्स ऑफ टारगेट साइट, जहां पे ये लिपिड्स और प्रोटीन्स यूज होंगे। क्या क्या है? एक इंट्रासेल्युलर, जिस सेल में ये अभी प्रोसेस हो रही है इस सेल में इन लिपिड्स और प्रोटीन्स का यूज होगा, उसको हम इंट्रासेल्युलर टारगेट साइट बोलेंगे। या इस सेल के बाहर, आउटसाइड द सेल, बॉडी में किसी और जगह, वहां पे भी इन लिपिड्स और प्रोटीन्स का यूज हो सकता है। ओके, उसको हम आउटसाइड द सेल टारगेट साइट बोलेंगे। ठीक है, तो इन लिपिड्स और प्रोटीन्स की ये पैकेजिंग करेगा। ओके, और कैसे करेगा पैकेजिंग? देखो, ये प्रोटीन सिंथेसिस, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन सिंथेसिस की। ओके, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बनाए। तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अब इंटर होगी गोल्गी बॉडी में, किससे? इस सिस फेज से। सिस फेज के थ्रू ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इंटर होंगे, और अंदर जब ये आएंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, इनकी प्रोसेसिंग होगी, इनकी पैकेजिंग होगी। ओके, और इनको ये अपने ट्रांस फेज से, जिसको हम मैच्योरिंग फेज बोलते हैं, यहां से रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ दीज वेसिकल्स।
ओके, इनको हम वेसिकल्स बोलते हैं। और इसमें क्या होगा, प्रोटीन। सो इस प्रोटीन को इसने इस वेसिकल की शेप में प्रोसेस किया, पैक किया। तभी हम बोलते हैं जो गोल्गी बॉडी होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल। पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल, क्योंकि ये लिपिड्स और प्रोटीन्स को पैक करता है पार्सल की तरह, इनको पैक करता है ताकि ये फिर अपने टारगेट साइट तक जा सके। ओके, तो ऐसे ही जब लिपिड्स आएंगे, अगर ये लिपिड मॉलिक्यूल है, जब लिपिड मॉलिक्यूल इसके अंदर आएंगे तो इसको भी ये प्रोसेस करेगा, पैक करेगा, और ये वेसिकल की शेप में ट्रांस फेज से मैच्योरिंग फेज इनको रिलीज करेगा, और इनको हम क्या बोलेंगे, लिपिड वेसिकल्स। ओके, तो ऐसे ये पैकेजिंग करता है। ओके, और दूसरा रोल जो इसका होता है वो होता है मॉडिफिकेशन। ये इंटरेस्टिंग है। तो मॉडिफिकेशन ये कैसे करता है, तो कुछ प्रोटीन्स और कुछ लिपिड्स, इनको ये मॉडिफाई करता है। कैसे करता है मॉडिफाई, देखो, जब ये प्रोटीन मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, ओके, सिस फेज के थ्रू इस गोल्गी बॉडी के अंदर जाएगा, और ये गोल्गी बॉडी क्या करता है, ये इन प्रोटीन्स को शुगर चेन अटैच करता है, शुगर चेन अटैच करता है। और स्टूडेंट्स, आपको पता है जब प्रोटीन के साथ शुगर प्रेजेंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन। इसको हम ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं। और ऐसे ही कुछ लिपिड मॉलिक्यूल्स को ये ऐसे ही शुगर चेन को अटैच करता है। और जब लिपिड मॉलिक्यूल्स को शुगर चेन अटैच होती है, उनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ग्लाइकोलिपिड्स। इनको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। तभी आपकी एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है, गोल्गी बॉडी इज द मेजर साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स। ओके, तो उसका फील आपको यहाँ पे आया होगा, कैसे ये ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स को फॉर्म करता है, कौन, गोल्गी बॉडी। ओके, सो दिस इज हाउ मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स आर डन। ओके, तो इसके बाद कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जो एंजाइम एक्ट करते हैं, क्योंकि एंजाइम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन्स। ओके, अब कुछ प्रोटीन्स, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये कुछ ऐसे प्रोटीन्स बनाता है, ओके, जो एंजाइम्स एक्ट करते हैं, यूजुअली डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ओके, सो कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स ये फॉर्म करता है। और जब ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स इस गोल्गी बॉडी में इंटर होंगे, तो ये गोल्गी बॉडी इनको एक वेसिकल में स्टोर करेगा, इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स को। और ये डाइजेस्टिव एंजाइम यूजुअली क्या क्या होते हैं, these digestive enzymes are lipases या carbohydrases, okay, or proteases। these are digestive enzymes। okay, these are digestive enzymes, and enzymes are basically proteins। okay, और इनको हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भी बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ओके, सो these are formed by this rough endoplasmic reticulum। और जब ये सिस फेज से इंटर होते हैं गोल्गी बॉडी में, तो ये इनको स्टोर करता है एक वेसिकल में। ओके, पहले लाइपेस आएगा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स, उसको भी इसी वेसिकल में स्टोर करेगा। ऐसे ही प्रोटीएसेस, इनको भी इसी वेसिकल में स्टोर करेगा। और जब इसको रिलीज करेगा यहाँ से, इस वेसिकल को, इसमें क्या होंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो इस वेसिकल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम्स। ओके, दिस इज ए लाइसोसोम। ओके, तो ऐसे लाइसोसोम्स फॉर्म होते हैं। ओके, तो दीज आर लाइसोसोम्स। इनमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, क्या क्या, कार्बोहाइड्रेसेस, प्रोटीएसेस और लाइपेसेस। और ये जो एंजाइम्स होते हैं स्टूडेंट्स, आपकी एनसीईआरटी लिखती है, ये एंजाइम्स एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। किस पे, एसिडिक, दे आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच। ओके, सो ऐसे लाइसोसोम्स फॉर्म होते हैं। अब गोल्गी बॉडी का काम होता है प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड मॉडिफिकेशन। ओके, तो अब जब ये पैकेजिंग और मॉडिफिकेशन होगी, तो कुछ वेस्ट मटेरियल तो निकलेगा ऑब्वियसली।
तो कुछ वेस्ट मटेरियल जो होता है जैसे वाटर और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होंगे, या कुछ ऐसे भी मटेरियल्स होते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं दैट आर नॉट यूजफुल टू सेल, नॉट यूजफुल टू सेल, जिनका सेल में कोई यूजफुल कोई काम नहीं होता है, तो उनको ये गोल्गी बॉडी एक अलग स्ट्रक्चर में स्टोर करता है जिसको हम वैक्यूल कहते हैं। ओके, तो इस वैक्यूल में ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, ये मटेरियल जो यूजफुल नहीं होते सेल के लिए, उनको ये इसमें स्टोर करता है। ओके, सो दिस इज द रोल ऑफ वैक्यूल्स। ओके, सो क्लियर, so this was all about it. Hope you have understood the concept very well. Okay, and enjoy the session. Thanks for watching.